Hello students, most welcome online English class. Today we are going to discuss exercise E. So all the students please open page number 10, exercise number E. A, B, C, D already over. Today we are going to discuss exercise number E. Change the following affirmative sentence into negative sentence. This sentence you can change in the form of all the sentence given in your affirmative sentence, and you should change this sentence in the form of negative. So firstly you should understood what is the concept of affirmative and negative. सबसे पहले तो वो ये जान लीजिए आप affirmative sentence और negative sentence किसे कहते हैं. Affirmative sentence and negative sentence, these two sentence having the part of assertive sentence. ये दोनों सेंटेंस assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस के ही भाग हैं. दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज assertive, दैट इज अफर्मेटिव एंड निगेटिव. सकारात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य के रूप में ये दो भाग बने हैं आपके assertive सेंटेंस के. assertive सेंटेंस having two part, affirmative and negative. Affirmative sentence having the positive sense of meaning. Affirmative sentence का तात्पर्य होता है जिसके अंदर जिस कॉन्सेप्ट में किसी बात को स्वीकार किया जाता है. Negative sentence having the negative sense of meaning. Negative sentence के अंतर्गत उस सेंटेंस के अंदर से नकारात्मक वाक्य वाले भाव छिपे होते हैं, नहीं वाले भाव छिपे होते हैं. इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को रीड करके उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. ओनली दिस मच. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. द टाइगर इज इनसाइड इट्स केज. व्हेन यू चेंज दिस सेंटेंस इन नेगेटिव सेंटेंस, द टाइगर इज नॉट, यू ऐड देयर इज नॉट. आप सेंटेंस में नॉट जोड़कर उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे. द टाइगर इज नॉट इनसाइड इट्स केज. क्लियर? देन सेकेंड वन, the desks in the classroom were dirty. You change the sentence in the form of negative sentence. The desks in the classroom were not dirty. Were not dirty. Not को add कर देंगे, sentence अपने आप negative form में change जाएगा. Then कविता is intelligent. कविता is not intelligent. Clear? Very easy way. You can change the sentence in the form of अफर्मेटिव टू निगेटिव. बिल्कुल इजी है. केवल नॉट वर्ड को जोड़कर आप सरलतापूर्वक इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. देन फोर्थ वन, पारुल क्लीन हर रूम डेली. पारुल डज नॉट क्लीन हर रूम डेली. पारुल डज नॉट क्लीन हर रूम डेली. क्लियर? देन द बर्ड फ्लीव अवे. द बर्ड डिड नॉट फ्लाई अवे. Rani's brother is strong. Rani's brother is not strong. The weather is very hot today. The weather is not very hot today. केवल not जोड़ देना है. Arvind likes grapes. Arvind does not like grapes. Singing is my hobby. Singing is not my hobby. The cat climbed the tree. The cat did not climb the tree. Very easily you can change this sentence in the form of negative sentence. Look at the whiteboard. All these answers here given. First answer is this one. Second answer is this one. Third answer. You can write all these answers at your book. Then afterward finally write at your fair copy also. So write it. Okay students. Then afterward we'll discuss exercise number F. So when you start this exercise number F, you should know all the definition of related to kinds of sentence. हम इस F एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये क्लियर कर लें, what is the definition of all these sentences. In this question read the sentence and write down all kinds of sentences. आपको सेंटेंस को रीड करके सेंटेंस के प्रकार को बताना है. So you should know ऑल द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है. सेंटेंस की डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की डिफिनेशन. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस. क्लियर?
देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैविंग, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, देन आफ्टरवर्ड असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सेंटेंस के प्रकार होते हैं। इन दिस बुक ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, बट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही अंतर्गत इसको रखा जाता है। क्लियर? सो यू शुड नो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दैट इज आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट सेंटेंस। दिस सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हैविंग गिव any statement, that is known as assertive sentence और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई स्टेटमेंट, कोई कथन हो तो वो आपका assertive सेंटेंस के अंतर्गत आता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज योर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज द क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी टू चेक आउट, वेरी इजी टू फाइंड आउट। क्वेश्चन मार्क जैसे दिखे आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इंपरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच गिव रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, जहाँ पे रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, एंड इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन हिडन फॉर्म, यू कैन अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है, उसे हमें अंडरस्टूड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्लियर? जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, सिट डाउन, तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरस्टूड करना पड़ता है, और उस सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य। क्लियर? द लास्ट वन इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिव सडन फीलिंग, इमोशन, जो एक सडन फीलिंग, अचानक कोई दुख, शोक, हर्ष की अनुभूति कराता हो, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू पुट देयर इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। असर्टिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस यू ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप। क्लियर? ओनली दिस मच। इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन इजिली यू कैन फाइंड आउट ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बिल्कुल ही सरलतापूर्वक आप सेंटेंस के प्रकारों को चेकआउट करके कैच कर लेंगे। लुक एट, where is C? There is the question mark. Very easy. Interrogative sentence. Then afterward, alas she is no more. There is the exclamation mark. Exclamatory sentence. Be quite, call police. Imperative sentence. देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है. Very easily you can check out. I cannot teach you Hindi. Assertive sentence का negative sentence है. Clear? Is the sun very hot? यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह को भूल गया है। क्लियर? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु मेड इट, इंट्रोगेटिव मार्क्स है तो आपका प्रश्नवाचक मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई मेड इट माई सेल्फ, दैट इज योर असर्टिव सेंटेंस। आई एम वॉचिंग द बर्ड इन द फील्ड, असर्टिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी ए टिकट, इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। व्हाट ए डिलीशियस केक, एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, exclamatory sentence. Very easily you check out, very easily you find out all the kinds of sentences. Clear? So look at all these answers here given. You read it, you write it at your note copy and complete your fair copy. And when I will start the new chapter, and this part you can do by itself. इसे आप अपने आप करेंगे. And next class we will start subject and predicate. When I going to start the subject and predicate, I will take the test related to this chapter. So be ready for the test next class. We will meet next class. Thank you.